Hello student, I am Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. Last video we have seen the little introduction of bill of exchange. I hope you understood very well. So we'll move to the next. But before that we'll recall what we have done last video. This is bill of exchange format. So as I told earlier, there is a 5 marks for bill of exchange format. So we have to write this amount, we have to put stamp, then drawer's name, drawie's name, then 80 days after pay to me my order, sum of rupees 16,950 only for value received, and this is a signature of both drawer as well as drawee. So this is a basically bill of exchange format. It comes for 5 marks. Now the next bill of exchange, again I am telling you a story. Mr. A, we have seen he was a seller and buyer, Mr. B. So Mr. A sold the goods to Mr. B on a credit basis. The main story is based on the credit basis only. If he sold the goods on a cash basis, then there will be no need of bill of exchange. So everything is depend on the credit. So if Mr. A sold the goods to Mr. B on credit and Mr. B make a promise that he will pay after certain periods. So whatever he told, whatever he make the promise, Mr. A will write in written form. So that is called bill of exchange. So already we have seen bill of exchange. Now we'll move to the types of bill of exchange. First inland bill of exchange and next one foreign bill of exchange. अब इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? इनलैंड मतलब हमारे इंडिया के अंदर, दैट इज बोथ ड्रॉन एंड पेबल विद इन द इंडिया. मतलब हमने बिल भी ड्रॉ किया इंडिया में और पे भी किया इंडिया में. सो दिस इज कॉल्ड इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज. Next is a foreign bill of exchange that is both drawn and payable outside the India. So this is very simple concept. It will come for the objective 1 marks. So just remember inland bill and the foreign bill. We'll move to the next. Already we have seen there are 3 parties involved in the bill of exchange. First one is the drawer, then drawee and the payee. As you know, drawer means who draw the bill. Who draw the bill? That means a seller. Drawer means is a seller. Who is the drawee? The person on whom bill is drawn. That is a buyer. And who is the payee? The person who ultimately, finally received the amount from drawee. So maybe drawer may be payee or maybe another person may be payee. So this is already I have explained my first video. So please watch my first video and then watch the second one. Then only you will get easy to understand. So we'll move to the next. Now this is the most important calculation of date. It comes for a 1 marks. So how to calculate the date? There are 2 types of date. First is a nominal date. Next is a legal date. Nominal date, that means before adding 3 grace days. And legal days means after adding a 3 grace days. Now what is a grace days? That is a extra days. कोई भी अगर हम डेट प्रॉमिस करते कि yes I will pay 15th July, बट 15 जुलाई के बाद भी हमको 3 डेज ग्रेस होते हैं. तो 15 जुलाई के बदले हम 16, 17, 18 will pay the 18 July, will pay the bill on 18 July. So every bill we need to add these 3 extra days. So remember that 3 days, this is called grace day. Now we'll see how to calculate. ये आपको तभी समझ में आएगा जब मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगी. So see, bill dated 14 December 2019, payable 19 days after date. Calculate the due date. इसका सिंपल मीनिंग है, ये 1 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के वक्त आता है. सिंपल है कि बिल उन्होंने ड्रॉ किया 14 दिसंबर और वो पे करना है आफ्टर 19 डेज. सो व्हाट विल बी द डेट आफ्टर 19 डेज? मतलब बिल एग्जैक्टली कब पे करना है. बिल ड्रॉ तो किया हमने 14 दिसंबर को, लेकिन 19 डेज के बाद drawee will pay the amount. So let's start. Now this is they have given in the days form. तो डेज फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करना है. सेकेंड मैं आपको बताऊंगी अगर उन्होंने मंथ में दिया आफ्टर 3 मंथ्स 2 मंथ्स तो कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी. तो फर्स्ट विल सी, सपोज इफ दे गिव्स इन अ फॉर्म ऑफ डेज, हाउ टू कैलकुलेट. सो वेरी सिंपल, मेक अ कॉलम,
सी ये ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं आपको, मंथ, एक्चुअल डेज एंड अनएक्सपायर्ड डेज। अब मंथ कब से स्टार्ट किया है हमने, बिल कब ड्रॉ किया है, दिसंबर। तो बेसिकली अगर आप सोचोगे तो 90 डेज मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 3-4 मंथ्स आप लिख लो, ठीक है। हियर ईयर विल गेट चेंज। See here after 19 December, don't forget to write here 20, नहीं तो हम गलती से 19 ही लिखते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन भी जानबूझ के 19 ही देते और हम घाई घाई में 19 लिखते हैं, ठीक है। सो रिमेम्बर दैट आफ्टर डिसम्बर एवरी डिसम्बर year get changed, so now it's 20, 20 and year 20. so ये 4 मंथ में ये 90 डेज कवर हो जाएंगे। एक्चुअल डेज दिसंबर में कितने होते हैं, 31st, जनवरी में 31st, फेब्रुवरी में 29। नाउ व्हाई 29, बिकॉज दिस इज कॉल्ड लिप ईयर। लिप ईयर मतलब क्या, जो 4 साल के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल सी ईयर 20, ये 24 से डिवाइड होता है। अब 20 के बाद 4 साल के बाद मतलब 24 में 29 डेज आएंगे फेब्रुवरी मंथ में। फिर 24 ईयर के बाद 28, 2028 में 29 डेज आएंगे। तो बाकी के साल 28 डेज ही होते हैं फेब्रुवरी में, लेकिन जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर मतलब जो हम ये लास्ट की फिगर 4 से डिवाइड होती है, वो ईयर लीप ईयर कहलाते हैं और वो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। तो ये याद रखना है, जानबूझ के यही ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। द नेक्स्ट इज मार्च, मार्च में भी 31 डेज होते हैं। सो ये टोटल डेज है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एग्जैक्टली अगर हमने 14 दिसंबर को बिल ड्रॉ किया तो 19 डेज मतलब एग्जैक्टली कौन सी डेट आएगी जहाँ पे ड्रॉवी आके ड्रॉवर को पैसे पे करेगा। सो विल कैलकुलेट। देखो 14 दिसंबर ऑलरेडी 14 डेज चले गए हैं 31 से। सो दिसंबर के कितने मंथ्स बाकी है, डेज बाकी है, 17 डेज बाकी है। देखो टोटल डेज 31, बट 14 को ड्रॉ किया तो 14 तो ऑलरेडी डेज चले गए, तो -14, तो डेज कितने बचे, 17। फिर जनवरी में 31, देखो ये दोनों की टोटल अभी भी 90 नहीं आ रही, हम जब तक ये कैलकुलेट करेंगे जब तक ये टोटल 90 नहीं आती, ठीक है। देन फेब्रुवरी के भी 29, देखो अभी तीनों की टोटल करो, ये तीनों की टोटल आई गेस 77 आती है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अभी भी 90 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो फेब्रुवरी में भी ड्रॉ भी नहीं आएगा पे करने। और कितने दिन बाकी है 19 डेज के लिए, देखो माइनस करो, 19 माइनस 77, ये 77 कैसे आए हैं, वी हैव टू मेक दिस ऑल टोटल। दिसंबर के 17 दिन बचे थे, जनवरी के 31st एंड फेब्रुवरी के 29, इट्स मेक अ टोटल 77। बट हमें तो 90 डेज के बाद पैसे मिलने वाले हैं, तो कितना फर्क है 90 डे में और 13 डेज का फर्क है। सो बिल हम पे कब करेंगे, 13 मार्च 2020। सो दिस इज कॉल्ड नॉमिनल डेट। देखो अब ये सबकी टोटल 90 डेज आई। अगर इन्होंने 90 के जगह पे 100 दिया होता, ये अगर सपोज 100 डेज के बाद होता, तो हमने यहाँ पे और क्या लिखा होता, 23 डेज, ठीक है। इजी है, वीडियो पॉज करो और फिर से कैलकुलेट करो, इजी कैलकुलेशन है एंड 1 मार्क्स के लिए है, ठीक है। ऑप्शंस भी आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, सिर्फ हमें सही ईयर वगैरह लिखना होता है, ठीक है। सो नाउ 90 डेज टोटल हो गई। सो नॉमिनल डेट हमारी कब आएगी, 13 मार्च 2020। डन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो ये इरेज करेंगे। ओके, सो नाउ see here, but as per rule we have to add 3 days as a grace day, तो 13 में 3 days आप add करो तो 14, 15, 16, so 16th March is a legal date. So finally Drawee will come on 16th March and will pay the bill. आया समझ में, देखो ड्रॉ किया था 14 दिसंबर, बट आफ्टर 19 डेज ड्रॉवी ने पे किया, ड्रॉवी ने प्रॉमिस किया कि ही विल पे आफ्टर 90 डेज। सो ये हमने कैलकुलेशन किया 90 डेज का एंड डेट कम 16 मार्च 2020। देन आई होप आपको समझ में आया ये डेज। ओके, now we'll move to the next. अब same problem, see we got answer here 16 March. अब सेम ही क्वेश्चन हम लेंगे लेकिन मंथ में लेंगे। देखो प्रीवियस 90 डेज में कहा था, समटाइम दे गिव्स इन अ
फॉर्म ऑफ मंथ, इट्स वेरी इजी, मंथ का बहुत इजी है। देन राइट द 14 दिसंबर 2019, 14 दिसंबर मतलब 12 होता है ना, दिसंबर का मंथ मतलब 12th मंथ। अब उसमें 3 मंथ्स हमें ऐड करने हैं, तो 3 डे मंथ ऐड करो, मंथ के नीचे मंथ लिखो, ये डेट है तो 3 मंथ्स के नीचे लिखो। तो अब हमारा डे आएगा 14th दिसंबर के बाद 3 मंथ्स मतलब जनवरी फरवरी एंड मार्च, मार्च मतलब 3 मंथ्स, देखो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, थर्ड मंथ में ही आता है ना मार्च। एंड ईयर विल गेट चेंज, डोंट फॉरगेट ईयर, ईयर विल गेट चेंज क्योंकि दिसंबर 19 है, तो आने वाला जनवरी फरवरी मार्च ये 2020 का होगा। सो दिस इज अ नॉमिनल डेट। नाउ व्हाट रूल से ऐड 3 डेज एज ग्रेस, अब डेज में ऐड करना है, मंथ में बोला है तो मंथ के नीचे ऐड करोगे, अब ये डेज बोला है तो ये डेज में ऐड करोगे। तो हमारा आंसर आएगा 17 मार्च 2020 लीगल डे। देखो एक दिन का फर्क है, अगर डेज में दिया तो वी गेट द आंसर 16 मार्च, और अगर मंथ में दिया तो वी गेट द आंसर 17 मार्च। आई होप समझ में आया है, मंथ का बहुत इजी है। अगर ये 4 मंथ्स होते तो हमारा आंसर क्या आता, देखो इसकी जगह हमने क्या लिखा होता, 4 लिखा होता, तो कौन सा मंथ आता यहाँ पे, 4 मंथ्स मतलब अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथे मंथ में कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। सो 14 अप्रैल आता नॉमिनल डेट, 3 डेज ऐड करते तो 17 अप्रैल लीगल डेट। ठीक है, ओके वन मोर थिंग, इफ सपोज इसका ये आंसर अब यहाँ पे 17 मार्च आया, लेकिन इसका आंसर अगर 15 मार्च आता, सॉरी 15 अगस्त आता, तो हम क्या करते। देखो कभी कभी आ जाता है कि हमारा 3 डेज ऐड करके हमने ग्रेस डे किया और वी गेट द आंसर 15th अगस्त, देन व्हाट वी हैव टू डू, नाउ दिस इज अ नेशनल हॉलीडे, 15th अगस्त तो नेशनल हॉलीडे है, तो अगर ऐसा डेज आता है तो हम 15 के जगह 14th अगस्त लेंगे, हमारा आंसर होगा 14th अगस्त। क्वेश्चन में जानबूझ के फिल इन द ब्लैंक्स में वो 15th अगस्त भी ऑप्शन देंगे, बट आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ कॉमन नॉलेज कि 15th अगस्त इज अ नेशनल हॉलीडे, तो नेशनल हॉलीडे के दिन कोई भी काम नहीं होता है, तो हम एक दिन पहले की डेट लीगल डेट कंसिडर करेंगे। तो अगर हमारा आंसर 15th अगस्त आया तो हम सिलेक्ट करेंगे 14th अगस्त। ठीक है, सेम इज 26 जनवरी, 26 जनवरी का भी ऐसे ही है, दैट इज अ नेशनल हॉलीडे, इंडिपेंडेंस डे होता है हमारा। सो 26 जनवरी अगर आंसर आया तो हम 25 जनवरी आंसर सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो ऐसे ट्विस्ट बोर्ड गवर्नमेंट देता है, तो हमें ध्यान से समझना है। सो रिमेम्बर द डेट 26 जैन एंड 15th अगस्त। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया है। नेक्स्ट विल सी द मोस्ट important part, now it's starting, now listen carefully क्योंकि अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा जो हमें करना है। इन प्रीवियस चैप्टर इट्स एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, फाइनल अकाउंट, अगर आपने देखा तो हमने अकाउंट ओपन किए थे। ठीक है, समटाइम दे आस्क द जर्नल एंट्री बट 80% दे आस्क द लेजर, अकाउंट्स पूछे थे, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में दे आस्क ओनली जर्नल एंट्री एंड 2 मार्क्स का लेजर होता है छोटा सा, बट दैट इज वेरी सिंपल पार्ट, सो वी हैव टू फोकस 98% टू द जर्नल एंट्री। तो अब हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट हो रही है, मेन पार्ट जिसे 10 मार्क्स होते हैं वो पार्ट हमारा स्टार्ट होगा। बट ये सीखने से पहले फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो पहला पहला वाला वीडियो वॉच करो बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये वाला वीडियो ठीक से देखो एंड देन जर्नल एंट्री स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको स्टोरी वाइज आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगी और आपको वो याद रखनी है। ठीक है, सो विल स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बेसिकली कहा था कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज टोटली डिपेंड ऑन क्रेडिट सेल्स। अगर कोई पर्सन कैश बेसिस पे सेल करता है तो वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है, बिकॉज बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट which make the promise that drawee will pay the amount to the drawer for a particular amount on a particular date। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा के पूरा क्रेडिट सेल्स पे डिपेंड होता है। अगर क्रेडिट सेल्स हुआ तो हमारी आगे की स्टोरी मूव होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हमारी हमेशा आएगी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब वो जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, को क्या अकाउंट डेबिट होगा क्या अकाउंट क्रेडिट होगा, दैट विल सी लेटर।
पहले आपको स्टेप बाय स्टेप स्टोरी समझनी है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री हमेशा आएगी क्रेडिट सेल्स की। नाउ क्रेडिट सेल्स होने के बाद आपको इमेजिन करना है आप दुकानदार हो, ठीक है। तो आपने क्रेडिट सेल्स कर दिया, आपने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इमीडिएटली बिल ड्रॉ किया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स का मैंने आपको पिक्चर भी बताया है ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। उसके बाद क्या किया आपने, बिल ड्रॉ किया। व्हाई यू ड्रॉ द बिल? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, वेन एवर द क्रेडिट सेल्स टेक प्लेस, drawer immediately draw the bill, because this is one type promissory note that buyer will pay the amount। तो ये उसने बिल ड्रॉ किया। देखो बिल ड्रॉ का मैंने आपको फॉर्मेट भी सिखाया है। तो ये बिल ड्रॉ किया, तो सेकेंड एंट्री विल कम बिल ड्रॉ की। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट एंट्री आपकी होगी क्रेडिट सेल्स की, सेकेंड एंट्री आपकी होगी बिल ड्रॉ की, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, क्वेश्चन कैसे भी आने दो, नीचे ऊपर कैसे भी आने दो, क्वेश्चंस कितना भी ट्रिकी आने दो, अगर ये स्टेप आपने फॉलो की तो डेफिनेटली आपकी जर्नल एंट्री 101% करेक्ट आएगी, ठीक है। मैं आपको एक दो मैजिक भी बताने वाली हूँ जिससे आपकी जर्नल एंट्री विद इन 5 मिनट्स में हो जाएगी। सो डोंट टेक टेंशन, जस्ट जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिख कर ले लो। सो फर्स्ट इज अ क्रेडिट सेल, सेकेंड इज अ बिल ड्रॉ। अब बिल ड्रॉ होने के बाद अब देखो पिक्चर सामने लेकर आइए, यू आर द सेलर, आपको एज्यूम करना है आप सेलर हो और आपके पास अब बिल ड्रॉ है। देखो साइन भी कर चुका है ड्रॉवी, और वो आपने आपके पास बिल रखा है। अच्छा सबसे पहला और एक क्वेश्चन, अब ये बिल किसके पास होगा, ड्रॉवर के पास होगा या ड्रॉवी के पास होगा, दुकानदार के पास होगा दैट मीन सेलर के पास होगा, या बायर्स के पास होगा। 2 मिनट सोचिए और मुझे बताइए। यस, तो बिल किसके पास होगा, ऑफ कोर्स ड्रॉवर के पास होगा, सेलर्स के पास होगा, बिकॉज बायर ने तो प्रॉमिस किया है, ठीक है। अगर बायर के पास ही अगर हमने वो प्रूफ रख दिया तो वो भी भाग जाएगा और बिल ऑफ एक्सचेंज भी हमारा गायब हो जाएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा ड्रॉवर के पास होता है, ठीक है। तो आपने क्रेडिट सेल्स कर दिया, फिर उसके बाद आपने बिल भी ड्रॉ किया, देखो आपने बिल ड्रॉ किया, फिर मिस्टर बी ने साइन करके अच्छे से आपको बिल वापस कर दिया। अब वो बिल आपके पास है और अब मिस्टर बी चला गया है, प्रॉमिस किया है कि यस आई विल पे योर बिल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। एज्यूम करो 3 मंथ्स है, ये पेपर में आपको सब देने देंगे, कितने मंथ्स का बिल है, कौन सी अमाउंट है, कितना क्रेडिट सेल्स दिया, एवरीथिंग इज गिवन। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट अमाउंट, ठीक है। सो बिल ड्रॉ कर दिया, अब आपके पास बिल है। नाउ यू हैव अ 4 ऑप्शन। अब ये बिल आप 3 महीने आपके पास रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड बिल रिटेन। मतलब 3 मंथ्स आप संभाल के रखोगे एक फाइल में, 3 मंथ्स आप इंतजार करोगे कि यस मिस्टर बी विल कम आफ्टर 3 मंथ्स एंड ही विल पे द अमाउंट, ठीक है। यू हैव अ सेकेंड ऑप्शन, ध्यान से देखना है, अगर आपको बिल रिटर्न नहीं करना है सो यू हैव अ सेकेंड ऑप्शन, दैट इज अ बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ बिल डिस्काउंटेड? इसका मतलब आपको 3 मंथ्स वो बिल आपके पास नहीं रखना है, आपने सोचा 3 मंथ्स में क्या करूँ ये बिल रख के, मुझे तो अभी पैसों की जरूरत है। तो आपका दिमाग चला और आपके दिमाग में एक आइडिया आई, आपने वो बिल अपने बैंक लेकर गए। एज्यूम करो वो बिल की अमाउंट है 10,000, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ले रही हूँ कैलकुलेशन के लिए, हमें इजी जाएगा, ठीक है। सो एज्यूम करो वो बिल की अमाउंट है 10,000। ओके यहाँ पे 1 लाख लिखा है तो चलो हम भी 1 लाख ही लेते, मतलब बिल भी सेम ही रहेगा, ठीक है। 1 लाख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो वो बिल की अमाउंट है 1 लाख। आपने सोचा कि यार मैं 3 मंथ्स इंतजार करूंगा, मिस्टर बी विल कम आफ्टर 3 मंथ्स एंड देन ही विल पे 1 लाख। आप तो पक्के बिजनेसमैन हो, तो आपने अपना दिमाग लगाया और आपने सीधा वो बिल लेकर आपने आपके बैंक चले गए, ठीक है। और बैंक जाके आपने बैंक को एक ऑफर दी, आपकी बैंक है जहाँ पे आपका अकाउंट है, ठीक है। आपने वो बैंक को ऑफर दी कि ये सर ये 1 लाख का बिल आप अपने पास रखिए 3 मंथ्स के लिए और अभी मुझे पैसे दीजिए,
ठीक है। लेकिन बैंक तो कोई हमारी चाचा मामा है नहीं कि बैंक इमीडिएटली रेडी होगी। तो बैंक क्यों हमें पैसे देगी? इसके पीछे बैंक का क्या रहेगा बेनिफिट? देखो, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास बिल है, 3 मंथ्स के बाद, सॉरी, इमीडिएटली आपने वो बिल बैंक लेकर गए हैं और बैंक को ऑफर दी है कि सर आप ये 1 लाख का बिल आपके पास रखिए, 3 मंथ्स के बाद मिस्टर बी विल कम एंड ही विल पे टू 1 लाख टू यू। आपको वो 1 लाख आकर पैसे देगा, अभी मुझे आप पैसे दीजिए। लेकिन बैंक बहुत क्या होती है, होशियार होती है। बैंक ने कहा ओके, मैं देता हूँ पैसे अभी इमीडिएटली, बट बैंक आई विल नॉट पे 1 लाख, आई विल गिव यू ओनली 95,000। ठीक है, बैंक भी बहुत शानी है। बैंक ने क्या बोला, ठीक है, हम देते हैं आपको, आपको इमीडिएटली अभी पैसे देते, ये बिल के बदले हम 3 मंथ्स इंतजार करेंगे, मिस्टर बी विल कम एंड विल पे टू अस 1 लाख। लेकिन हम आपको अभी 1 लाख नहीं देंगे, हम आपको सिर्फ 95,000 देंगे। तो देखो, इसमें बेनिफिट किसका हुआ? बेनिफिट सिर्फ बैंक का हुआ, क्या बेनिफिट आपका भी हुआ? सोचो, इमेजिन करो कि आप सेलर हो, आपके हाथ में बिल है और आपने बैंक को ऑफर दी है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये बेनिफिट दोनों को हो चुका है। बैंक को क्यों हुआ है? क्योंकि बैंक को तो क्या करना है, सिर्फ ये बिल संभाल के रखना है 3 मंथ्स तक। जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, मिस्टर बी विल कम एंड पे 1 लाख टू द बैंक, क्योंकि अब बिल किसके पास है, बैंक के पास है। तो जिसके पास बिल है उसके पास ही मिस्टर बी जाएगी और पे करेगी। ठीक है, तो बैंक को तो 3 मंथ्स के बाद 1 लाख मिल जाएंगे। आपका बेनिफिट क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग 3 मंथ्स, आप 3 मंथ्स इंतजार करोगे, उसके भले आपको इमीडिएटली 95,000 मिले। तो एज ए बिजनेसमैन आप यही सोचोगे, तो चलो रहने दो, 95 तो मिल गए, 3 मंथ्स में इसके 95 का डबल बना दूंगा। सच्चा बिजनेसमैन यही होता है, डबल कैपिटल डबल पैसे बनाता है। तो आपने भी दिमाग लगाया, 95,000 3 महीने पहले ही मुझे मिल चुके हैं, तो इसको तो मैं डबल बनाऊंगा। तो इसमें बेनिफिट किसका हो गया? इसमें बेनिफिट आपका हो गया एज वेल एज बैंक का हो गया। सो दिस इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड। बैंक ने क्या किया, डिस्काउंटेड, बैंक ने अमाउंट कम दी, डिस्काउंट रिसीव्ड बैंक ने किया। ठीक है, बैंक ने 1 लाख के बजाय आपको कितना पेमेंट किया, 95,000। सो दिस इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट क्रेडिट सेल्स होने के बाद आपने बिल ड्रॉ किया, देन यू हैव फर्स्ट ऑप्शन रिटेन विथ योरसेल्फ, वो बिल 3 महीने अपने पास रखो, 3 महीना इंतजार करो, 3 महीने के बाद बी आएगा और आपको पे करेगा। लेकिन अगर आप सच्चे बिजनेसमैन हो, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप चुप नहीं बैठोगे, आप वो बिल लेके इमीडिएटली बैंक के पास जाओगे, बैंक को ऑफर दोगे कि भैया ये आप क्या करो, आपके पास बिल रखो 3 मंथ्स के लिए, मिस्टर बी विल कम एंड पे 3 मंथ्स 1 लाख। बैंक भी खुश हो गई, बैंक ने बोला ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंक ने इमीडिएटली 95,000 दिए। बैंक ने दिए 95,000, लेकिन बैंक को 3 मंथ्स के बाद मिलेगी कितना, 1 लाख। सो 5,000 का फायदा बैंक को हो गया। एंड दिस इज अ स्मॉल अमाउंट, इसलिए आपको इतना 5,000 नहीं लग रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े अमाउंट होते हैं लाखों में, 10 लाख 20 लाख, तो बैंक उतना ही डिस्काउंट कट करती है, तो बैंक को उतना ही ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटेड। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 3-4 वीडियोस आपको थोड़े डिफिकल्ट जाएंगे, लेकिन एक बार आपको ये अच्छे से याद होगी स्टोरी, तो आपकी जर्नल एंट्री बहुत इजी जाएगी। ठीक है, नाउ अनदर, यू हैव अ थर्ड ऑप्शन, बिल एंडोर्स। अब देखो, ये भी एक ऑप्शन है। अब मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया था कि हम ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअल में मार्केट के में इसका क्या वैल्यू है। ठीक है, तब मैंने बताया था, अगर आपका फर्स्ट वीडियो होगा तो फर्स्ट वीडियो अब फिर से देखिए, सुनिए ध्यान से, उसमें मैंने कहा था बेनिफिट यूज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो लास्ट में वहां पे एक पॉइंट था कि बिजनेसमैन कैन गेट द हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। जब उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी होती है तो बिल ऑफ एक्सचेंज काम करता है।
तो आपको समझ में आया कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज ने यहाँ पे काम किया, इमीडिएटली उसको पैसे मिले ना 95,000। पहला वीडियो देखो, वहां पे दिया है मैंने, ठीक है। नाउ विल सी थर्ड ऑप्शन। अगर उसको रिटेन भी नहीं करना है, वो बिल खुद के पास भी नहीं रखना है, उसको बैंक के पास भी बिल नहीं देना है, सो अगेन ही हैज अ थर्ड ऑप्शन। इसमें से कोई भी एक ही ऑप्शन वो फॉलो कर सकता है, इतना याद रखना है। सो नाउ व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? बिल एंडोर्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल एंडोर्स? देखो यहाँ पे एक पर्सन बताया है, तो ये रिलेटेड विद द पर्सन। चलो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपने क्रेडिट सेल्स किया, बिल ड्रॉ किया, और वो बिल आपने एंडोर्स किया। एंडोर्स मीन्स ट्रांसफर। एंडोर्स मीन्स क्या होता है? ट्रांसफर। आपने ये बिल ट्रांसफर किया, एज्यूम करो मिस्टर सी को, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बिल एंडोर्स। तो आपने ट्रांसफर क्यों किया बिल 1 लाख? आपके पैसे हैं, आपने सेल किया है क्रेडिट सेल्स पे, तो आपने बिल मिस्टर सी को क्यों एंडोर्स किया, ट्रांसफर किया? इसका मतलब क्या है कि नाउ बी विल गो टू मिस्टर सी एंड विल पे 1 लाख टू मिस्टर सी, है ना। एंडोर्स किया है मतलब ट्रांसफर किया है। जिसके पास बिल होता है उसके पास ही आखिर ड्रॉवी को जाना होता है और बी पे करना होता है। जैसे पहले बैंक के पास था तो ड्रॉवी को बैंक के पास जाना पड़ा, यहाँ पे मिस्टर सी के पास जाना होगा उसे, ठीक है। तो क्यों ऐसे किया उसने? तो बिल एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर। दैट मीन्स कि अगर आपने अब देखो एज्यूम करो आपका ये फ्रेंड है, सर्कल है, ठीक है। ये आप हो, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब मिस्टर सी आ गए हैं नए, ठीक है। तो क्या हो गया ना, ये स्टोरी में आपने कभी कब तो 2-3 महीने पहले मिस्टर सी से 1 लाख लिए थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, बी आएगा आपके पास 3 महीने के बाद, फिर आप 1 लाख, बी आपको देगा 1 लाख, ठीक है। फिर आप ये 1 लाख लेके क्या करोगे? 1 लाख लेकर जाओगे सी के पास और फिर आप सी को 1 लाख दोगे, ठीक है। देखो आपने सी से कभी तो 2 महीने या 3 महीने पहले 1 लाख लिए थे, आपको वो भी लौटाने हैं। तो पहले आप क्या इंतजार करोगे कि बी आएगा, बी मुझे 1 लाख देगा, फिर मैं सी के पास जाऊंगा, फिर सी को 1 लाख लौटा दूंगा। तो दिस इज अ सर्कल। तो इतना घुमाने से आपने सोचा कि एक काम करता हूँ, बी मेरे पास आएगा, फिर मैं उसके पास सी के पास जाऊंगा, इट्स टेक टाइम। तो डायरेक्टली मैं ये बी का बिल डायरेक्टली सी को ट्रांसफर करता हूँ। तो बी विल डायरेक्टली गो टू सी एंड विल पे द 1 लाख। तो हिसाब सबका चुकता हो गया। आया समझ में? दैट इज वाई मिस्टर ए एंडोर्स द बिल, ट्रांसफर द बिल टू मिस्टर सी। अब बिल सी के पास है तो बी सी के पास जाएगा और 1 लाख पे करेगा। और इतने आसान तरीके से ए का भी जो लोन था, जो उसने पैसे उठाए थे, वो खत्म, चुकते हो गए। बी को भी लौटाने ही थे ए को, तो ए के बजाय उसने सी को लौटा दिया, सब फ्री हो गए, ठीक है। सो एंडोर्समेंट मतलब बिल ट्रांसफर करना, ठीक है। सो इन दिस केस बैंक इज अ पेई। देखो बैंक इज द पेई, इन दिस केस सी इज द पेई। पेई का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली जो लास्ट में फाइनल अमाउंट रिसीव्ड करेगा वो होता है, ठीक है। सो इन दिस केस बैंक के पास बिल है तो बैंक विल बी पेई। ये केस में सी के पास बिल है तो सी विल बी पेई। आया समझ में? एंड फाइनली लास्ट वन इज अ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये होने के बाद हम स्टॉप करेंगे। सो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर आपको रिटर्न भी नहीं करना है बिल, डिस्काउंट भी नहीं करना है, आपको ट्रांसफर भी नहीं करना है, तो एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इट्स वेरी सिंपल। आप बैंक को रिक्वेस्ट करोगे कि ये मेरा बिल आप आपके पास रखो, 3 मंथ्स के बाद आप ही कलेक्ट करो मिस्टर बी के पास, और वो जो भी अमाउंट कलेक्ट करोगे आप मेरे ही अकाउंट में डिपॉजिट करो। हाँ लेकिन बैंक ये फ्री में तो नहीं करेगी, तो बैंक उसके लिए क्या करेगी? बैंक चार्जेस लेगी। फुकट में तो बैंक कभी कुछ काम नहीं करती है, ठीक है। सो इसके बदले बैंक बोलेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कलेक्ट करता हूँ आपका बिल आपके बदले।
मैं अपने बंदे को भेजता हूँ मिस्टर बी के पास, उसके पास से पैसे वसूल करता हूँ, लेकिन उसके लिए पेट्रोल जाएगा, टाइम जाएगा, तो उसके लिए तो मुझे कमीशन चाहिए। सो बैंक उसके लिए बैंक चार्जेस करेगी, मतलब 10,000 5,000 जो बैंक की पॉलिसी होगी इस तरह से। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज ये बैंक में और ये बैंक में। यहाँ पे हमें पूरा के पूरा बिल देना होता है, और पूरा के पूरा बिल पे किसकी कौन ओनर होता है यहाँ पे? बिल बैंक ओनर होती है। बट यहाँ पे बैंक ओनर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बैंक एक मिडलमैन का काम कर रही है। यहाँ पे बैंक सिर्फ जाके वो बंदे से पैसे कलेक्ट करेगी और मिस्टर ए के ही अकाउंट में पैसे जमा करेगी, मिस्टर ए के ही अकाउंट में पैसे डालेगी, सिर्फ थोड़ा सा चार्जेस क्या करेगी? चार्ज करेगी, थोड़ा पैसा कमीशन लेगी। ठीक है, सो दिस आर द 4 ऑप्शन फॉर अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखो एक कागज का टुकड़ा कितने सारे काम कर सकता है। अब समझ में आया बिल ऑफ एक्सचेंज? अभी तक हम सिर्फ बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल ही समझ रहे थे कि ये बिल एक्सचेंज है क्या। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज कितना मार्केट में काम करता है। ठीक है, सो पहले एंट्री आएगी हमारी क्रेडिट सेल्स की, दूसरी एंट्री आएगी बिल ड्रॉ की, और तीसरी एंट्री हमारी इसमें से जो क्वेश्चन में पूछेगी, कभी क्वेश्चन में रिटर्न देंगे, कभी बिल डिस्काउंटेड देंगे, कभी एंडोर्स देंगे, तो कभी बिल सेंड फॉर कलेक्शन देंगे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन हमें पढ़ना है और डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सी केस है, और जो केस है उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सी अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट टीचिंग यू जर्नल एंट्री राइट नाउ। मैं सिर्फ आपको स्टेप्स सिखा रही हूँ। एक बार ये स्टेप्स अच्छे से समझ में आई तो मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको 10 मिनट्स में पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। तो बस हम इतना ही स्टॉप करते हैं, इसकी आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन प्लीज 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 आप मेरा पहला वीडियो एंड सेकेंड वीडियो देखो, तो थर्ड वीडियो दिखेगा, आपको समझेगा। ये बाकी के जैसे चैप्टर के जैसा नहीं है कि ठीक है एक वीडियो नहीं देखा डायरेक्टली थर्ड प्रॉब्लम किया, डायरेक्टली फिफ्थ प्रॉब्लम किया, एट प्रॉब्लम किया, नहीं। ये हर वीडियोस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, सो प्लीज वॉच माय वीडियोस, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर डाउट होगा तो बेशक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।